Hello friends, in this particular video we are going to talk about certain doubts sent to me by some of my students. Now let's talk about the first doubt. Now this particular video I have done on my practice sheets because this is a doubt sent by one of my student, and to solve this doubt I have taken this route. The question says that how to solve x square plus 100x minus 300 equal to 0. एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 300 इक्वल्स टू 0, ये इसको सॉल्व करना ये क्वेश्चन है. एंड एज पर माई नॉलेज दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम कंपेयरिंग दिस नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 300 इक्वल टू 0 विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. नाउ व्हेन आई कंपेयर बोथ ऑफ देम आई गेट ए इक्वल टू 1, b इक्वल टू 100 एंड c इक्वल टू माइनस 300. ये तीन टर्म्स हैं. नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे कैन गो फॉर फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल टू सॉल्व दिस, बट इतने बड़े नंबर्स के लिए आई वुड सजेस्ट डोंट गो फॉर फैक्टराइजेशन मेथड, गो फॉर फार्मूला मेथड. वो थोड़ा ईजी पड़ता है बट इट इज़ सब्जेक्टिव. एवरी स्टूडेंट हैज़ गॉट देयर ओन चॉइस. आप किस मेथड से जाना चाहते हैं टू सॉल्व दिस. आई हैव गॉन विथ फार्मूला मेथड. फार्मूला मेथड में द फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैलकुलेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. Now यहाँ पर when we calculate b square minus 4ac I get b is 100 square minus 4 into a is 1 into c is minus 300, because यहाँ पे minus 300 है, so I am taking minus 300. This 100 square minus 4 and minus 300, minus will become plus. 4 into 1 is 4, 4 3 is 1200. So here 100 square is there, here 1200 is there. Now how I have solved this? 100 स्क्वायर को आई कैन राइट 100 मल्टीप्लाई 100 एंड 1200 को आई कैन राइट 12 मल्टीप्लाई 100. सो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यू विल बी गेटिंग 100 कॉमन इन बोथ ऑफ देम. दोनों में 100 टर्म कॉमन है. आई एम टेकिंग दैट कॉमन 100 आउटसाइड. इन द फर्स्ट ब्रैकेट व्हाट रिमेन्स इज 100, इन द सेकंड ब्रैकेट व्हाट रिमेन्स इज 12. अगर 100 कॉमन बाहर जाता है तो 100 प्लस 12 बचेगा ब्रैकेट के अंदर. नाउ टू सॉल्व दिस 100 प्लस 12 इज 112. 112 इंटू 100 इज द वैल्यू फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बट we are more interested in finding its square root. इसका square root निकालना है. So in order to find the square root I would suggest the best method is that first break down this number. इन numbers को break down करते हैं smallest possible numbers में. 100 can be written as 10 multiply 10 and 112 can be written as 16 multiply 7, and 16 multiply 7 में 16 को हम लिख सकते हैं 4 multiply 4 multiply 7. Now when we solve this, why I have written it in this way? इसको अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, बट मैंने इसको इस तरह से इसलिए लिखा है बिकॉज 10 एंड 10 दो बार 10 आता है. वी कैन टेक द स्क्वायर रूट एंड 1 10 विल कम हियर. 2 times 4 is coming, we can take the square root, 1 4 will come here. 7 we cannot take square root because only 1 7 digit is there. So this becomes 10 into 4 into root 7. This is the value for b square minus 4ac. Now according to formula method, x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a. Now when I am talking about b square minus 4ac upon 2a, so this I will solve. यहाँ पर b square minus 4ac रूट जो दिया है इसके लिए I will keep this value 10 into 4 into root 7. 10 into 4 is 40 root 7. In place of minus b, minus 100 will come because b's value is 100. So this becomes minus 100 plus or minus 40 root 7 upon 2 into 1. A is 1, you can see from the question. So simplifying this, जब इसको हम simplify करते हैं what we can do, 100 can be written as 20 multiply 5, 25 से 100 होता है, and 40 can be written as 20 multiply 2. Again I can show you that दोनों में 20 common आ रहा है, so I can take that 20 common outside. So what can happen, ये जब 20 कॉमन बाहर जाएगा 2 and 20, 2 1s are 2 10s are, 10 will remain in the bracket, 5 plus minus 2 root 7 will remain. So एक टर्म आएगा आपका प्लस में, दूसरा टर्म आएगा आपका माइनस में. यू कैन कीप द आंसर एज इट इज़, और इफ़ यू वांट यू कैन मल्टीप्लाई दिस 10 इनसाइड, तो ये आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा. दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ कमिंग बैक टू डाउट नंबर 2, सिंस आई हैव टू कवर सो मेनी डाउट्स ऑफ so many students who are sending, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स को कवर कर सकूँ एक बार में. सो दैट्स द रीज़न आई हैव इंक्लूडेड 2 डाउट्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. अ बस कवर्स 300 किलोमीटर डिस्टेंस विथ यूनिफॉर्म स्पीड. ध्यान से देखना,
बस जो है वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, मतलब एक ही पर्टिकुलर स्पीड से बस चल रही है. इफ़ इट स्पीड इज़ इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड हम इंक्रीज कर देते हैं बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट विल टेक 1 आवर लेस. ऑब्वियसली बात है, अगर कोई 20 का स्पीड में चल रहा है और बाद में 30 के स्पीड में चलता है, तो 30 के स्पीड में चलेगा तो उसका टाइम कम लगता है कंपेयर टू 20 का स्पीड. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ दैट कि बस का स्पीड अगर इंक्रीज कर दिया तो टाइम कम लगेगा. द गैप बिटवीन द टाइम इज़ 1 आवर. नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई हैव सॉल्व्ड इट like time equal to distance upon speed, a basic formula from science. Here initial speed is x, let initial speed be x and new increased speed I have taken as x plus 10. अगर आप पहले वाले स्पीड को x लेते हो जब बस स्लो चल रही है और बाद में जब बस ज़्यादा पिकअप लेती है, तो दैट स्पीड कैन बी टेकन एज x plus 10 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नाउ दोनों में से ज़्यादा टाइम किसको लगने वाला है? बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है. ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा टाइम लगेगा जब बस कम स्पीड में चल रही है. सो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा. दिस विल टेक मोर टाइम, दिस विल टेक लेस टाइम. सो मोर टाइम माइनस लेस टाइम, दोनों के बीच में गैप कितना आएगा? द गैप विल बी 1 आवर. सो दिस कम्स ओल्ड स्लो स्पीड, दिस इज़ द ओल्ड स्पीड, द स्लो स्पीड, माइनस द न्यू फास्ट स्पीड, दिस इज़ द न्यू फास्ट स्पीड. इसमें जो टाइम लग रहा है माइनस इसमें जो टाइम लगेगा, दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम. टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर. एंड फर्स्ट टाइम कितना है? फर्स्ट केस में ये टाइम, ये हमारा स्पीड जो है वो x है. सो 300 अपॉन x विल गिव यू द फर्स्ट टाइम. सिमिलरली सेकेंड केस में 300 अपॉन x प्लस 10 विल गिव यू द सेकेंड टाइम. ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है. दिस इज़ मोर, दिस इज़ लेस. 300 अपॉन x माइनस 300 अपॉन x प्लस 10, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन माय लाइव मीटिंग्स. लाइव मीटिंग्स में मैंने इस तरह के 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं. सो पीपल हु डोंट नो अबाउट दैट, आई जनरली टेक live meetings on Instagram live on my Instagram ID, which you can see over here, BS double dash very simple methods. Also I take sorry I'm so sorry about that. Also I take the YouTube live sessions on @Vishal Singh QT9UQ as and when my time permits me. Now I have already solved this kind of question in my live sessions. अगर आप Instagram पे मुझे follow करते हो, so you will be notified when I take my Instagram live sessions. 300 goes outside, 1 upon x minus 1 upon x plus 10 is there. You will be taking cross multiplication, x plus 10 1 से multiply करेंगे, x को यहाँ multiply करेंगे. एंड इसके आगे का पार्ट मैंने शो नहीं किया बिकॉज ये मैंने कई बार सॉल्व करके शो अप किया है लाइव सेशंस में. सो अल्टीमेटली योर इक्वेशन विल कम समथिंग लाइक दिस. आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस. ये इक्वेशन आने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल बी गेटिंग योर आंसर समवेयर अराउंड 50. सो दिस इज ऑल फॉर ऑल द डाउटफुल क्वेश्चंस. नाउ I also wanted to talk about something more, and that something more is this. Now people who are watching this is included for any category student. आप 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बारे में आप अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हो, अपने छोटे भाई बहन से भी शेयर कर सकते हो. Now what I have written over here is there are certain numbers written by me. What these numbers mean? ध्यान से सुनना, मैं क्या पैटर्न बता रहा हूँ. This is square number from 1 to 50. This is square number from 51 to 100. 1 to 50 and 51 to 100. How to handle this? 1 का square is 1, 2 का square is 4, 3 का square is 9, 4 का square is 16, 5 का square is 25, 6 का square is 36. So people who don't know what squaring is, it means 6 multiply 6 is 36. 7 multiply 7 is 49. Same number multiply same number gives 64. Now how to write all this? The trick which I am going to teach you right now, अगर आप इसको फॉलो करते हो और इसको डेली प्रैक्टिस करते हो, आई एम श्योर इनफ यू कैन राइट डाउन स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एज क्विकली एज पॉसिबल. फॉर दैट टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा, दिस इज 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, दिस इज 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर 20 स्क्वायर. मतलब ये 1 to 10 का सीरीज़ है, ये 11 to 20 का सीरीज़ है, ये 21 to 30 है, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80, 81 to 90, 91 to 100. These are the series. Now what happens in this case is, अगर आप ध्यान से देखते हो, what I want to highlight is, please look at the last digit. 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0. डिफ़िकल्ट लगता है समझने के लिए? चेक हियर, 1
49656941 आप जब ये सारे स्क्वायर्स लिखते हैं, सारे लास्ट डिजिट के जो नंबर हैं वो सेम ही रहेंगे, 1496569410। ना व्हाट मोर आई वांट टू हाईलाइट इज, सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है 54 और मुझे ढूंढना है कि ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है, द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड से इज़ दैट 54 अगर स्क्वायर होगा भी तो ये किसी 2 सीरीज़ के नंबर का स्क्वायर होगा या 8 सीरीज़ का होगा। सपोज 2 का स्क्वायर आप देख सकते हैं 4 है, 8 का स्क्वायर आप देख सकते हो 64 है, तो 54 तो यहाँ है नहीं, वो स्क्वायर है नहीं। सपोज़ अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 484, ना 484 या तो 2 सीरीज़ का स्क्वायर में आएगा या तो 8 में आएगा, वो कभी भी 6 का स्क्वायर नहीं हो सकता, 9 का स्क्वायर नहीं हो सकता। 9 के जितने भी स्क्वायर हैं आप देख सकते हैं सबका लास्ट डिजिट 1 1 1 1 है। 7 के सारे लास्ट डिजिट 9 9 9 9 9 है। 8 के लिए सब 4 4 4 है, तो 8 सीरीज़ में 4 आता है और 2 सीरीज़ में लास्ट डिजिट 4 आता है। नेक्स्ट व्हाट आई वांट टू हाईलाइट इन दिस इज 149, आगे 0 0 0 है। जैसे आप 9 क्रॉस करते हो इमीडिएटली आप देखते हो आगे का जो नंबर है ये 1 इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब 1 2 3 हर एक नंबर एक पिछले नंबर से 1 1 इंक्रीज होते जा रहा है। 1 2 3 4 9 क्रॉस करते हैं, नाउ द गैप बिटवीन द नंबर्स विल बिकम 2 2, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 2 16, 9 आ गया, 9 क्रॉस करेंगे, 16 + 3 अब 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 25, 25 + 3 28, 28 + 4 बिकॉज 9 क्रॉस कर रहे हैं। तो ये पैटर्न जब जब आप 9 क्रॉस करोगे जो गैप है वो एक बढ़ जाता है। नाउ वन मोर थिंग आई वांटेड टू हाईलाइट इज, आप वो पैटर्न लेकर चलेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा। नाउ सपोज एट रैंडम अगर मैं कहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया, ये है 1 11 21 31 41 का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट विल आस्क मी सर हाउ टू कैलकुलेट डायरेक्टली 41 का स्क्वायर। थिंग्स आर वेरी इजी। 40 का स्क्वायर होगा 1600 बिकॉज 4 का स्क्वायर होता है 60 और 40 के पीछे आएगा डबल ज़ीरो, तो 40 का स्क्वायर हो गया 1600। ना ये नंबर कैसे आया, टू आइडेंटिफाई दिस नंबर टेक दिस 1 एज इट इज़, ठीक है। ना 4 का डबल क्या होता है, 4 2 इज़ 8, 4 2 इज़ 8, सो 1600 में 16 के पीछे आपको वो 8 इंक्लूड करना है, 1681 विल बी द पैटर्न। दिस वे वी कैन मेक द स्टार्ट। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया यू विल बी गेटिंग दिस थिंग्स वेरी इजीली। सेकेंड थिंग व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इज 5 सीरीज़ के नंबर्स अलग तरह से चलते हैं। सपोज आपको 75 का स्क्वायर लेना है, 75 का स्क्वायर कैसे लेते हैं, पीछे नंबर आएगा 25 एंड द नंबर विच शुड बी अहेड इज 75 का अगर आप स्क्वायर ले रहे हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 7 विद द नेक्स्ट नंबर, 7 × 8, 7 8 जाए 56। तो यहाँ आप कहीं भी देख सकते हैं सीरीज़ में ये रहा 75 का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी ने पूछा मुझसे कि 7744 ये स्क्वायर किस नंबर का हो सकता है, टू आइडेंटिफाई 7744 सबसे पहले आप ये देखो कि 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, 60 का होगा 3600, 70 का होगा 4900, 80 का होगा 6400, 90 का होगा 8100। तो हमारा नंबर 7744 6400 और 8100 के बीच में आता है, मतलब वो इसी सीरीज़ में होगा ना। इस सीरीज़ में अगर आपको ये सीरीज़ नहीं भी पता है तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि नंबर कहाँ हो सकता है। 7744 में लास्ट डिजिट है 4, लास्ट डिजिट 4 या तो 2 पे पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो 8 पे हो सकती है, तो ये नंबर आपको कैलकुलेट करना और ये कैलकुलेट करना तो आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ आप देख सकते हो 7744 80 सीरीज़ में अगर है, अगर ये 80 सीरीज़ का नंबर है तो आप 85 का नंबर पहले चेक करो। 85 का मतलब होता है 8 × 9, 8 9 = 72 और पीछे आएगा 25, 7225। 65 का आप देख सकते हैं 6 7 = 42 और पीछे 25। 55 का 5 6 मतलब जो भी नंबर सीरीज चल रही है उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है 5 को, 5 6 = 30, 30 और 25। दिस इज़ वन थिंग। अनदर पैटर्न विच आई वांटेड टू हाईलाइट इन दिस केस इज़ लास्ट के 2 डिजिट अगर आपको पता है 01 04 09 16 25 36, अगर आप ये पूरा डिजिट देख रहे हो ये 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स हैं। 51 से लेकर 60 तक के स्क्वायर में आप ध्यान से पैटर्न देख सकते हैं 81 81, 64 64, 49 49। अगर आप इसी सीरीज़ में आप 21 के स्क्वायर देखते हैं 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 21 से 30 के आप स्क्वायर देखते हो
उसी तरह से आपके सामने 51, 61, 71 जो सीरीज़ 21 फॉलो करेगा वही सीरीज़ 71 फॉलो करेगा। आप लास्ट के 2 डिजिट देख सकते हैं, यू कैन हैव अ लुक एट द लास्ट 2 डिजिट्स 41, 84, 29, 41, 84, 29, 76, 25, 76, 76, 25, 76, 29, 84, 41, 00, 29, 84, 41, 00। सो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू हाईलाइट। बाकी आप सब स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, जब भी आप इन नंबर्स को देखते हो इसके बीच में पैटर्न डेवलप होता है एंड देर आर हंड्रेड्स ऑफ सच पैटर्न्स। बहुत सारे और भी पैटर्न्स हैं बट ऑल ऑफ देम आई कांट डिस्कस ऑन वीडियो। सो ऑन अ लाइटर नोट आई वुड से दैट टुडे वाज अ गेम विद दिस नंबर्स एंड आई होप कि सबकी थोड़ी बहुत हेल्प मैंने की हो। इफ़ यू लाइक द चैनल kindly subscribe it. Today I haven't mentioned anything because this is my practice paper. So all I can say is that if you like my channel, please have a look here. This is my channel, YouTube @Vishal Singh QT9UQ and Instagram VS _ very simple methods. This is for doubt and live sessions. This is for posting my videos and sometimes I take live sessions on YouTube as well. If you like my video, kindly like and subscribe my channel and हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं ताकि मेरा चैनल और इम्प्रूव हो, मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करूं अपने टीचिंग मेथड्स में। विद दैट हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।